Hello students. In the last video we have seen examples regarding to the angle of elevation, how to find out different types of lengths measures. By using those examples we have studied. Today I am here with a little different example. Here already I have drawn figure for your better understanding. Better understanding in which sense? This page only I am going to give you for notes purpose. That's why appropriate figure also I drawn. I will show you in rough manner also. Here I will show you what will be the how this figure is formed. But listen here, first of all look this example and read. The angle of depression of the top and the bottom of an 8-meter tall building. Are you getting? I'm reading first line. Look, you focus on the first line only. The angle of depression of the top and the bottom of an 8-meter tall building, 8-meter tall building, from the top of a multi-storied, from the top of the multi-storied, we can say, from the top of the multi-storied building are 30 degree and 45 degree respectively, are 30 degree and 45 degree respectively. Find the height of the multi-storied building and the distance between two buildings. Find the height of the multi-storied building and the distance between those two buildings. Then what is mean by this and how to draw a figure, that I am going to show you. Listen and try to understand over here how this figure is formed. Look here, you will come to know that the angle of depression, in previous all example we have seen the angle of elevation. Here only this example is belongs to the angle of depression. Okay, here we are going to convert that angle of depression in the form of angle of elevation. That is the trick and that is very important, and then we will solve by using our own method that we have studied before. Okay, the angles of depression of the top and the bottom of an 8-meter tall building. Okay, 8-meter, the angle of depression of the top and bottom of an 8-meter tall building from the top of multi-storied building. This is very important. Means here there are two buildings. Here this figure I will elaborate first of all. रब मैं फिगर ड्रॉ करके दिखाता हूँ. नोट्स में तुम्हें यही फिगर ड्रॉ करके जो हम एक्सप्लेनेशन देंगे वो नोट्स में एज इट इज कॉपी करना है. आज यही पेज तुम्हें नोट्स के लिए कॉपी करना है. ये फिगर में पहले तुम्हें समझा देता हूँ कैसी फिगर है. देखो, हियर देयर इज वन 8-meter small building, and front of that building there is one multi-storied building. Are you getting? And when the observer is standing from the top of this building, multi-storied building, and looking towards the bottom, that time angles are given over here. When the observer is standing up and looking down, that time the angle which is formed, that is known as angle of depression. You know that very well. Okay, look here. Then 8-meter tall building. If you see carefully, then the angles of depression of the top and the bottom. Top means this position and bottom means this position. We will consider, what we will consider? AB is the small building and CP is the bigger building, or PC is the bigger building, means multi-storied building. BA and PC. इधर हमने फिगर में दिखा, देखो ये BA and PC दो पार्ट्स दिख रहे हैं, वो है buildings. The angle of depression of the top and bottom of an 8-meter tall building, ये 8-meter tall building है. AB जो है small, ये 8-meter tall building है. समझने के लिए मैं इधर लिखता हूँ 8 मीटर. ये कितना है? 8 मीटर. ओके, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द 8-meter tall building, top and bottom of the 8-meter tall building from the top of the multi-storied building are 30 degree and 45 degree. Means when the observer is standing over here at point P, when the observer is standing at point P and looking towards point B and looking towards point A, that means what? Look here, when the observer is looking from this point P to A and this B and A, B means that observer is looking towards top of the small building, and A means that observer is looking at bottom of the small building. And that time the angles which are formed, those angles are given, means like that. Look here, like this, ऐसे एंगल्स होंगे. ओके, दिस एंगल, अभी इधर ऑब्जर्वर खड़ा है, नीचे देख रहे हैं, यानी कि ये होगा हॉरिजॉन्टल लाइन. समझे? दिस इज नोन एज व्हाट? हॉरिजॉन्टल लाइन. गॉट आइडिया? इधर हमने पॉइंट लिया है Q. अंडरस्टूड?
तो ये जो एंगल है ये है 30 डिग्री, और बाद में ये जो एंगल है डाउन तक, इधर ये जो नीचे तक दिख रहा है ये है 45 डिग्री। इधर मैंने अप्रोप्रिएटली दिखाया, देखो 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। आर यू गेटिंग? डू यू अंडरस्टैंड? मीन्स इसका मतलब ये है, व्हेन द ऑब्जर्वर इज स्टैंडिंग at the top of this multi-storied building and looking towards the top and bottom of the small building, that time, okay, when that observer is looking at the top, that time angle is formed 30 degree, and when that observer is looking towards downside, that time that angle is formed 45 degree, okay, respectively. Then what we want to find out? Then find the height of the multi-storied building. We have to find out the height of the multi-storied building, means PC, and the distance between buildings, means we have to find out the value of AC. Suppose I will join this, then you will come to know that. Look here, and suppose I will draw here one perpendicular line on this, then you will come to know that, suppose I will take here point D, then you will come to know that here ACDB is one rectangle. This is the perpendicular line, we can say. Here also it is 90 degree. If you'll see, then here also 90 degree, here also 90 degree. Then those are known as angles of a rectangle. ABDC भी कह सकते हो, ACDB भी कह सकते हो, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, ओके। अगर तुम ध्यान से देखोगे अभी, if you will see carefully, then you will come to know that. Look in this figure. What is that? QPB. Suppose we will consider over here, what we will consider? BD is parallel to PQ. BD is parallel to PQ and PB is a transversal. BD is parallel to PQ and PB is a transversal. Then angle QPB and PBD, those are alternate angles, means those will be in this form. ऐसे फॉर्म में रहेंगे, देखो ये एंगल और ये एंगल। अभी ये एंगल में मालूम है 30 डिग्री, तो 100% ये एंगल भी कितना होगा? 30 डिग्री, मीन दिस एंगल विल बी आल्सो व्हाट? 30 डिग्री। Are you getting what I said? Next, look here. Suppose we will consider like that. We will consider, means we will mention over here only. AC is parallel to PQ. 100% AC will be parallel to PQ. Why? Because look here. BD is parallel to PQ. It means AC is parallel to PQ. Why? AC is parallel to BD, and when BD is parallel to PQ, then 100% AC will be parallel to PQ. And when AC will be parallel to PQ and PA is a transversal. What is the transversal? PA is a transversal. That time again figure like that. And this angle is what? 45 degree. Means 100% this angle will be what? 45 degree. Means this angle is given over here what? 45 degree. Do you understand? Means now we are going to find out height of the multi-storied building, means PC and AC. And we are going to find out PC and AC by using this 30 degree and that 45 degree angle. We will not use those angles, means those angle of depressions, means here whatever mentioned over here, those angles we have mentioned as the angle of depression. By using those angle of depression, we have found over here what? Angle of elevation. By using those angle of depression, we have found over here angle of elevations, and by using those angle of elevations, we are going to find out PC and AC. Are you getting? This is nothing but we have converted, what we have converted? Angle of depressions into angle of elevations, and after all whatever things are there we have to carry as it is. ऐसे जैसे हमने पिछले एग्जाम्पल में स्टेप्स कैरी किए थे वैसे ही कैरी करने हैं। अभी नोट्स जब तुम लिखोगे तो ये एग्जाम्पल के नीचे ये फिगर ड्रॉ करो, ये मैंने तुम्हें समझने के लिए दिखाई है। आई विल स्टार्ट दिस एग्जाम्पल वट एवर आई टोल्ड, जो मैंने बताया मैं अभी इधर लिख रहा हूँ, लिसन केयरफुली। हियर PC, what I said here, PC denotes inverted comma है, हम inverted comma में लिखते हैं ना, PC denotes the, मैंने 3 पार्ट्स बनाए, एग्जाम्पल थोड़ा लंबा है। PC denotes the multi-storied building. PC denotes, ये PC denotes the multi-storied building. Here PC denotes the multi-storied building. Are you getting? And AB denotes
हमें लिखना पड़ता है पूरा, ध्यान से देखो इधर क्या लिख रहा हूँ मैं. एंड ए बी डिनोट्स, व्हाट ए बी डिनोट्स? ए बी डिनोट्स 8 मीटर टॉल बिल्डिंग. स्मॉल बिल्डिंग के बजाय हम क्या यूज करेंगे? 8 मीटर टॉल बिल्डिंग. 8 मीटर टॉल बिल्डिंग. ए बी डिनोट्स 8 मीटर टॉल बिल्डिंग. गॉट आइडिया? आपने अभी भी देखा हो. देन हियर पी क्यू इज पैरेलल टू बी डी. हियर पी क्यू इज पैरेलल टू बी डी. Here PQ is parallel to BD. Here PQ is parallel to what? BD. And PB is a transversal. Which transversal we are going to consider? PB. मैंने इधर तुम्हें दिखाया. And PB is a transversal. And PB is a transversal. Then angle QPB. Angle QPB and angle PBD. Are you getting? Angle PBD. Which type of angles? I told you alternate angles. What I said? Angle QPB is equal to angle PBD. Okay? Is equal to angle what? PBD. What is the reason? इधर ब्रैकेट में लिखता हूँ, देखो नीचे लिख रहा हूँ ब्रैकेट में, तुम सामने लिखो अल्टरनेट एंगल्स. अल्टरनेट एंगल्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं. बाद में नेक्स्ट क्या करेंगे, देखो इधर. सिमिलरली पी क्यू इज पैरेलल टू ए सी. लुक हियर, सिमिलरली दिस पी क्यू इज पैरेलल टू ए सी. क्यों पी क्यू इज पैरेलल टू ए सी? देखो इधर ये बी डी पैरेलल पी क्यू से है और ये बी डी पैरेलल ए सी से भी है. तो ए और ए भी क्या हो गई? पैरेलल. क्योंकि ये क्या हो गया? रेक्टेंगल हो गया. वो आगे जाके हम लिखने वाले हैं उधर. ओके, लिसन. Do you understand what I said? Similarly, PQ is parallel to AC. Similarly, PQ is parallel to AC and PA is a transversal. PA is a transversal and PA is a transversal. देन एंगल QPA, देखो इधर फिर से दिखा रहा हूं, QPA एंड PAC. एंगल QPA इज इक्वल टू एंगल PAC. व्हाट इज रीजन? सेम रीजन, अल्टरनेट एंगल्स. गॉट आइडिया? Both are now alternate angles. Then we can write, then PBD, angle PBD is equal to 30 degree and angle PAC is equal to 45 degree. समझ में आया? QBP कितना है? 30 डिग्री है. इधर देखो QBP 30 डिग्री है एंड QPA 45 डिग्री है. इधर देखो QPB 30 डिग्री है एंड QPA 45 डिग्री है. तो ये दोनों के एंगल, ये जो उसके इक्वल एंगल है वो भी 30 डिग्री और 45 डिग्री होंगे. तो इधर लिखा PBD इज इक्वल टू 30 डिग्री एंड PAC इज इक्वल टू व्हाट? 45 डिग्री. नाउ इन राइट एंगल्ड ट्रायंगल PBD, now in right angled triangle PBD, angle इन राइट एंगल्ड ट्रायंगल PBD की जगह ऐसे भी लिख सकते हो तुम. इधर देखो मैं दिखा रहा हूं तुमको. इन राइट एंगल ट्रायंगल PBD ऐसा मैंने लिया है. इधर PDB अगर लिख रहे हो तो भी कुछ प्रॉब्लम नहीं है. ओके लिखते वक्त क्या लिखो? PBD लिखा तो भी कुछ प्रॉब्लम नहीं है, PDB लिखा तो भी कुछ प्रॉब्लम नहीं है. इधर हम लिखेंगे अभी PBD इज इक्वल टू 30 डिग्री. PDB ऐसा लिखोगे तो भी कुछ प्रॉब्लम नहीं. लिखेंगे हम इधर PBD की जगह, मैंने क्या बोला देखो इधर फिर से मैं दिखा रहा हूं. इधर PBD ऐसा बोला, ये राइट एंगल ट्रायंगल, एक्चुअली राइट एंगल ट्रायंगल के लिए ऐसा हो ये PDB. तो मैं इधर समझने के लिए वही भी लिखता हूं.
PDB क्या लिखा है देखो, नाउ इन राइट एंगल ट्रायंगल PDB PBD इज इक्वल टू 30 डिग्री। PBD कितना है 30 डिग्री, तो रेशियो यूज करेंगे फिगर में देखो, PBD इज इक्वल टू, ये एंगल हमें कितना मिला 30 डिग्री मिला, तो रेशियो यूज करेंगे। वी कैन फाइंड आउट हियर व्हाट, वी कैन राइट हियर व्हाट, PD डिवाइडेड बाय BD बाय यूजिंग द tan रेशियो। बाद में दूसरे ट्रायंगल में भी tan रेशियो यूज करेंगे और इक्वल करके हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं देखो इधर, ओके। नाउ इन राइट एंगल ट्रायंगल PDB एंगल PBD इज इक्वल टू 30 डिग्री, ओके। देयरफॉर tan theta is equal to PD divided by BD. What I have written, PD divided by BD. tan theta is equal to, देखो अपोजिट साइड ये 30 डिग्री एंगल है, हम ये फिगर कंसिडर करेंगे तो अच्छा लगा। इधर लिखा नहीं है, लिखने की जरूरत नहीं है, इसलिए लिखा नहीं है, डायरेक्ट यही फिगर ड्रॉ करनी है, ओके। ये फिगर तुम नोट्स में ड्रॉ करो, ओके। समझने के लिए मैंने फिगर दिखाई, देखो 30 डिग्री, अपोजिट साइड कौन सी, PD डिवाइडेड बाय BD, ओके। PD डिवाइडेड बाय BD, वैल्यूज पुट करो। देयरफॉर tan ऑफ 30 डिग्री इज इक्वल टू, PD क्या होता है, PD हमने कुछ नहीं कंसिडर किया तो PD वैसे के वैसे रहेगा, डिवाइडेड बाय BD, डिवाइडेड बाय व्हाट, BD, ओके। अभी tan 30 डिग्री की वैल्यू पुट करेंगे, क्या आती है देखो, 1/√3। देयरफॉर 1/√3 इज इक्वल टू PD डिवाइडेड बाय BD, PD डिवाइडेड बाय BD। देयरफॉर हियर वी कैन फाइंड आउट BD, BD हम फाइंड आउट कर सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से। BD इज इक्वल टू, BD इंटू 1 यानी कि BD क्या होगा, √3 इंटू PD, इसको हम बोलेंगे इक्वेशन नंबर 1। क्या हमने फाइंड आउट किया इधर, BD इज इक्वल टू √3 इंटू PD। नेक्स्ट अभी दूसरा ट्रायंगल कंसिडर करेंगे। नाउ इन ट्रायंगल विच वन, PAC, PAC की जगह PCA भी तुम कंसिडर करोगे तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है। नाउ इन ट्रायंगल PCA एंगल PAC इज इक्वल टू 45 डिग्री। देयरफॉर अभी डायरेक्ट लिखता हूँ, देखो इधर tan ऑफ थीटा, डायरेक्ट यानी कि हम रेशियो लिखेंगे अभी इधर, tan थीटा क्या होगा, PC डिवाइडेड बाय AC, PC डिवाइडेड बाय AC, इसको हम बोलेंगे सेकेंड इक्वेशन। गॉट आइडिया, इधर वैल्यू कुछ भी नहीं पुट किया है, वो हम आगे जाके पुट करने वाले हैं। ध्यान से देखो हमें क्या मिला, PC डिवाइडेड बाय AC, बट अभी तुम ओनली देखते जाओ क्या हो रहा है, ध्यान से सोचो और देखते जाओ। बट क्वाड्रिलैटरल ABDC, क्वाड्रिलैटरल ABDC, but quadrilateral ABDC is a rectangle, am I right? Is a what, rectangle. Therefore BD is equal to AC and AB is equal to DC. BD is equal to AC, opposite sides are equal, and AB is equal to what, DC. Got idea? Okay, then we will write here what we can write, look here, AC is equal to, इधर देखो BD is equal to AC लिखा है, but we got here BD already, BD हमने इधर फाइंड आउट किया है, देखो BD is equal to √3 इंटू PD, तो AC की जगह हम ऐसे लिख सकते हैं, AC is equal to √3 इंटू PD लिख सकते हैं हम ऐसे, क्यों, डॉट डॉट करके हम अभी इसका रीजन लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 BD इज इक्वल टू, अगर AC है तो AC इज इक्वल टू √3 इंटू PD। गॉट आइडिया, समझे कि नहीं समझे? आई होप सो यू आर गेटिंग आइडिया व्हाट आई एम टेलिंग ओवर हियर। नेक्स्ट ऑल्सो देखो इधर क्या देखेंगे, देखो इधर मैंने तुम्हें दिखाया था, इधर AB इज इक्वल टू कितना है 8 मीटर, ये AB की लेंथ कितनी है, 8 मीटर टॉल बिल्डिंग है, एंड AB एंड DC ऑल्सो इक्वल, देयरफॉर DC इज इक्वल टू 8 मीटर, DC इज इक्वल टू क्या आ गया, 8 मीटर आ गया। गॉट आइडिया? ओके, नाउ कंसिडर सेकेंड इक्वेशन, नाउ कंसिडर 2, we get
इक्वेशन 2 क्या है देखो, tan ऑफ थीटा, tan थीटा, इधर tan थीटा कितना है 45 डिग्री, तो लिखेंगे डायरेक्ट tan ऑफ 45 डिग्री इज इक्वल टू PC, PC एज इट इज रहेगा डिवाइडेड बाय AC, PC डिवाइडेड बाय AC। अभी वैल्यू पुट करो, tan ऑफ 45 डिग्री 1 इज इक्वल टू PC डिवाइडेड बाय AC, क्रॉस करो, देयरफॉर AC इज इक्वल टू व्हाट, PC। इसको बोलेंगे हम इक्वेशन नंबर 3। क्या किया है देखो, इक्वेशन सेकंड कंसीडर किया, इक्वेशन सेकंड इधर है, अभी tan 45 इधर भी कर सकते हैं हम, लेकिन इधर हम क्यों किया है अभी तुम्हें पता चलेगा थोड़ी देर में। ओके, हमें क्या मिला, AC इज इक्वल टू PC। ओके, नाउ लुक हियर, देन PC इज इक्वल टू, देन PC इज इक्वल टू, इधर देखो फिगर में, PC इज इक्वल टू PD प्लस DC, एम आई राइट, ये टोटल PC है, तो PC दो पार्ट्स में है देखो, इक्वल नहीं है लेकिन दो पार्ट्स में है, PD प्लस DC। अभी इधर देखो PC इज इक्वल टू PD प्लस DC, देयरफॉर PC इज इक्वल टू AC, तो AC इज इक्वल टू PD प्लस DC। बट इधर देखो, अभी ऊपर ध्यान से देखो, इधर हमने क्या दिखाया, PC इज इक्वल टू AC इज इक्वल टू PC, तो इधर PC इज इक्वल टू क्या, PD प्लस DC, तो PC की जगह हमने क्या लिखा, AC। बट लुक हियर, दिस AC इज इक्वल टू BD, दिस AC इज इक्वल टू व्हाट, BD, तो हम ऐसा लिख सकते हैं BD इज इक्वल टू PD प्लस DC, BD इज इक्वल टू व्हाट, PD प्लस DC। अंडरस्टूड, समझे? ओके, अभी वैल्यू पुट करो, BD की वैल्यू हमें मालूम है इधर √3 इंटू PD, इसमें पुट करो, किधर, इस BD में क्या आता है देखो, ध्यान से देखो अभी एग्जांपल। ओके, देयरफॉर BD की वैल्यू हम क्या पुट करने वाले हैं अभी, √3 इंटू PD इज इक्वल टू PD प्लस DC। ओके, ये हमने कैरी किया है ऊपर, इधर देखो PD इज इक्वल टू PD प्लस DC है, तो BD की जगह हमने क्या रखा, ये रखा, और PD प्लस DC एज इट इज। ओके, नेक्स्ट, नाउ व्हाट विल डू, वी विल पुट द वैल्यूज ऑफ द गिवन पॉइंट्स, मीन्स लुक हियर लाइक दैट, √3 इंटू PD, ये PD को इस साइड को ट्रांसफर करेंगे तो माइनस PD होगा इज इक्वल टू DC, DC की हमने वैल्यू इधर फाइंड आउट की है देखो, DC इज इक्वल टू क्या है 8, इज इक्वल टू व्हाट 8। अभी इधर ध्यान से देखोगे, इधर एग्जाम्पल में स्टेप को देखो ध्यान से, इधर PD इज द कॉमन फैक्टर, तो PD को बाहर निकालो, बचेगा क्या, √3 माइनस 1 इज इक्वल टू 8, √3 माइनस 1 इज इक्वल टू 8। गॉट आइडिया? ओके, तो अभी क्या करेंगे देखो, देयरफॉर PD इज इक्वल टू, इस √3 माइनस 1 को डिवाइड करते हैं उस साइड को, 8 डिवाइडेड बाय √3 माइनस 1। अभी क्या करेंगे देखो, वी वांट टू फाइंड आउट PD, हमें PD फाइंड आउट करना है, तो ये √3 माइनस 1 अभी जाना चाहिए, क्योंकि √3 अगर -1 अगर रहेगा तो ऐसे कभी लेंथ नहीं हो सकती है, तो हम क्या करेंगे, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर, इस डिनोमिनेटर को रैशनलाइज कर देते हैं। कैसे देखो, PD इज इक्वल टू, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर मीन्स व्हाट, 8 इंटू, ये अभी √3 माइनस 1 है, √3 प्लस 1 से न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर को क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, यानी कि √3 प्लस 1 डिवाइडेड बाय √3 माइनस 1 इंटू √3 प्लस 1, यानी कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को हमने किससे मल्टीप्लाई किया, √3 प्लस 1 से मल्टीप्लाई किया, तो आंसर क्या आता है देखो, PD इज इक्वल टू 8 √3 प्लस 1 डिवाइडेड बाय, अभी ये किस फॉर्म में है देखो, ध्यान से देखो इधर, अभी ये किस फॉर्म में है, √3 माइनस 1 एंड √3 प्लस 1 मीन्स A माइनस बी एंड A प्लस बी, यानी कि A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर फॉर्म में लिख सकते हैं हम, तो √3 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, देयरफॉर PD इज इक्वल टू 8 √3 प्लस 1 डिवाइडेड बाय
√3 का स्क्वायर कितना आता है 3 माइनस 1 का स्क्वायर 1। देयरफॉर पी डी इज इक्वल टू 8 इन ब्रैकेट √3 प्लस 1 √3 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 3 माइनस 1 2। देयरफॉर पी डी इज इक्वल टू 2 1 जार 2 2 4 जार 4 √3 प्लस 1, यानी कि आंसर क्या आ गया पी डी इज इक्वल टू 4 √3 प्लस 1। अंडरस्टूड? ओके। अभी ये पी डी क्या है देखो, पी डी हमने क्या फाइंड आउट किया, ये पी डी ऊपर का फाइंड आउट किया। अभी हमें डी सी फाइंड आउट करना है। ओके, समझे कि नहीं समझे? अगर डी सी फाइंड आउट किया जाए और पी डी में अगर डी सी मिलाया जाए तो हमें क्या मिलेगा? समझ में आ रहा मैं क्या बोल रहा हूँ? ओके, ये हमने पी डी अभी फाइंड आउट किया है, तो हमें डी सी फाइंड आउट करना पड़ेगा। नहीं तो हम डायरेक्ट भी क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, पी सी भी फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? डी सी फाइंड आउट करने की ज़रूरत नहीं है, सॉरी डी सी फाइंड आउट करने की ज़रूरत नहीं है। डी सी ऑलरेडी हमें मालूम है। इधर देखो, ओह तो हमें मिल गया। देखो अभी पी डी मिल गया, डी सी भी मिल गया, तो पी सी फाइंड आउट करेंगे। पी सी फाइंड आउट करने के बाद ए सी मिल जाएगा, बिकॉज पी सी इज इक्वल टू व्हाट? ए सी। हमने इधर प्रूव किया है, देखो पी सी इज इक्वल टू ए सी। तो हम अभी क्या फाइंड आउट करेंगे? टोटल पी सी फाइंड आउट करेंगे। अभी पी डी मिला, डी सी मालूम है, तो पी डी में अभी डी सी ऐड करेंगे। ओके, देन ओके देखो इधर, देन हाइट ऑफ मल्टी स्टोरेड building, height of multi-storied building. Got idea what I said? The height of then height of multi-storied building. Okay, multi-storied building यानी कि क्या है? PC. PC is equal to PD plus DC. Got idea? Then I will write here PC is equal to PD plus DC. PC is equal to PD हमने फाइंड आउट किया है, देखो इधर 4 इन ब्रैकेट √3 प्लस 1 ब्रैकेट कंप्लीट प्लस DC हमें मालूम है इधर 8। व्हाट इज DC? 8। गॉट आइडिया? अंडरस्टूड? अभी इधर देखो ध्यान से, मल्टीप्लाई करो। PC इज इक्वल टू 4 से मल्टीप्लाई करो, 4 इंटू √3 यानी कि 4 √3 प्लस इंटू प्लस 4 इंटू 1 4 प्लस 8। PC इज इक्वल टू 4 √3 प्लस 4 प्लस 8 कितना होगा? 12। 4 प्लस 8 कितना होगा? 12। गॉट आइडिया? तो अभी पीसी के लिए हम आगे जाएंगे। मैं इधर सॉल्व करके दिखाता हूँ। देखो इधर ध्यान से देखो, अभी हम एंड तक आ रहे हैं एग्जाम्पल के। देयरफॉर पीसी इज इक्वल टू, आंसर क्या मिला हमें? 4 √3 प्लस 12। ओके, अगर ध्यान से देखोगे तो 12 में भी 4 है, यानी कि ऐसे PC इज इक्वल टू 4 √3 इंटू 4 √3 प्लस, देखो मैं क्या कर रहा हूँ, 4 √3 प्लस 12 यानी कि क्या? 4 इंटू 3। 12 यानी कि क्या? 4 इंटू 3। अंडरस्टूड? अभी क्या कॉमन है देखो, PC इज इक्वल टू 4 इज द कॉमन फैक्टर, तो बचेगा क्या अंदर? √3 प्लस 3, ये हो गई PC। यानी कि हाइट ऑफ मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग इज व्हाट? 4 इन ब्रैकेट √3 प्लस 3 मीटर, सॉरी सेंटीमीटर नहीं, मीटर। बिल्डिंग है, सेंटीमीटर में नहीं होगी, मीटर। अंडरस्टूड? द हाइट ऑफ मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग इज 4 इन ब्रैकेट √3 प्लस 3 मीटर। अभी हमने पीसी फाइंड आउट किया है, तो अभी हमें क्या फाइंड आउट करना है? अभी फिर से पीसी, डिस्टेंस बिटवीन द टू बिल्डिंग्स। इधर देखो, डिस्टेंस बिटवीन द टू बिल्डिंग्स, ये भी बोला है क्वेश्चन, डिस्टेंस बिटवीन द टू बिल्डिंग्स। डिस्टेंस बिटवीन द टू बिल्डिंग्स मीन्स व्हाट? AC। बट ऑलरेडी हमने दिखाया है, व्हाट वी हैव शोन? AC इज इक्वल टू PC। गॉट आइडिया? AC इज इक्वल टू व्हाट? PC। तो हम वो पुट करेंगे,
नाउ ध्यान से देखो अभी एग्जांपल लास्ट में हम आ रहे हैं इधर. नाउ द डिस्टेंस, now the distance between two buildings is PC is equal to what? AC. हम लिखेंगे इधर प्रूव्ड. देयरफॉर AC इज इक्वल टू, जो हमने PC की वैल्यू निकाली है वही कॉपी करेंगे एज इट इज़. PC की वैल्यू हमने क्या निकाली है? 4 इन ब्रैकेट √3 + 3, 4 इन ब्रैकेट √3 + 3 मीटर. गॉट आइडिया? ये हो गया डिस्टेंस. थोड़ा सा लंबा एग्जाम्पल है इसलिए मैंने एक ही एग्जाम्पल आज लिया है. फिर से दिखा देता हूँ. देखो ये तुम्हें नोट्स में लिखना है आज एज इट इज़, जो मैं दिखा रहा हूँ अभी. ध्यान से देखो, ये है हमारा एग्जाम्पल. ओके, एक ही शूट में अगर दिखाना है तो ऐसे दिखा सकता हूँ. ये फिगर ड्रॉ करो. ये फिगर समझने के लिए दिखाइए, ये ड्रॉ करने की कोई ज़रूरत नहीं है. ओके, हमने फिगर ड्रॉ की. बाद में ये पॉइंट है पहला, ये बॉक्स जो दिख रहा है ये पहला है. ये तुम्हें लिखना है नोट्स में. ओके, PDB ट्रायंगल कौन सा है? PDB. एंगल PBD इज इक्वल टू 30 डिग्री. बाद में ये सेकंड बॉक्स लिखो. इधर से स्टार्ट होता है 1/√3. PD डिवाइडेड बाई BD है तो BD इज इक्वल टू √3 इंटू PD मिल गया. BD इज इक्वल टू PD प्लस DC. ये लास्ट पॉइंट इसमें का. और एंड हमने ये दिखाया. ये देखो वैल्यू पुट की, इधर से स्टार्ट है, वैल्यू पुट की. ध्यान से देखो, द हाइट ऑफ मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग. ये क्या है? देन हाइट ऑफ मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग PC इज इक्वल टू 4√3 + 12. इधर तक है. और लास्ट पार्ट इधर देखो. नाउ द डिस्टेंस बिटवीन टू बिल्डिंग इज. आई होप्स यू गॉट आइडिया अबाउट दिस एग्जाम्पल. दिस इज एग्जाम्पल रिगार्डिंग टू द एंगल ऑफ डिप्रेशन. ऐसे कन्वर्ट करते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन को एंगल ऑफ एलिवेशन में. रिमेनिंग एग्जाम्पल यू विल कंटिन्यू इन द लास्ट लेक्चर, इन द नेक्स्ट लेक्चर. थैंक यू.